السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی ایک نامور شخصیت جسے آپ اور ہم شیخ علامہ و مولانا صوفی جلال الدین صاحب کے نام سے جانتے ہیں، ماشاء اللہ حضرت کی خدمات تو لوگوں کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہیں کہ الحمدللہ وہابیوں کا رد کرنا، اسی طرح اہل سنت والجماعت کے عام لوگوں کو صحیح عقائد فراہم کرنا، شیعوں کی تردید کرنا، ماشاء اللہ حضرت جو ہے اہل سنت والجماعت کہیں بھی پورے ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی ضرورت ہوتی ہے عقائد کے معاملات میں یا کسی بھی چیزوں میں، تو الحمدللہ وہاں جا کر وہ اہل سنت والجماعت کے احباب کی امداد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ شیخ صوفی جلال الدین صاحب جو ہے دارالعلوم برکات امام احمد رضا، جو کہ اسلام پور یعنی سانگلی ضلع کے اندر واقع ہے، وہاں اس مدرسے کی الحمدللہ باہری نظام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے عطیات اور چندے سے چلتا ہے۔ تو وہ مدرسہ در حقیقت الشاہ خلیفہ بغداد و جانی میاں و غیاث ملت مولانا انور حسین رضوی صاحب کے زیر نگرانی میں ہے۔ تو وہاں کی جو تمام تر باہری نظام ہیں اس کی اکثر ذمہ داریاں حضرت نے شیخ صوفی جلال الدین صاحب کو سونپی ہیں۔ تو فلہذا آپ کے نظروں کے سامنے حضرت کا چہرہ بھی ہے اور اس کے علاوہ مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے۔ تو برائے کرم آپ لوگ اس مدرسے کی خوب امداد کریں اور شیخ صوفی جلال الدین صاحب کا بھرپور ساتھ دیں۔ الحمدللہ یہ صاحب جو ہے صرف اس مدرسے کی خدمت نہیں بلکہ اس علاقے کے اندر سانگلی ضلع کے اندر وہابیت کثرت سے ہے، تو یہاں جہاں کہیں بھی مسجد بنانے کی ضرورت ہوتی ہے یا اماموں کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی علاوہ قریب کے علاقے کرناٹک وغیرہ ہر جگہ جہاں کہیں بھی اہل سنت والجماعت کو امامت کی یا مسجد بنوانے کی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو حضرت الحمدللہ تمام جگہوں پر تمام لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو برائے کرم آپ لوگ ان کی خوب امداد کریں، کیونکہ ان کے توسل الحمدللہ اللہ پاک ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ مدارس وغیرہ کا خوب ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا۔ ہیلو خالد دیوبندی، اس دن تم نے کہا کہ عشاء کے بعد کال کروں گا، تم نے بعد میں عشاء کے بعد کال نہیں کیا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس دن سے 3-4 دن سے تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ بولو نا۔ میں یہ بول رہا ہوں، تم نے جو کہا کہ انگریز کے لشکر میں خضر علیہ السلام کو جس نے دیکھا وہ کشف کے ذریعے سے دیکھا، یہ تو تمہاری بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ اچھا ہاں، تمہارے مولوی نے خود کتاب میں لکھا ہے کہ مراد آباد کے جامع مسجد میں حضرت مولانا کھڑے ہوئے تھے، تو مولانا کھڑے ہوئے تھے قاسم نانوتوبی گنج مراد آباد کی جامع مسجد میں۔ اگلے چھوکا احمد رضا کی طرح گنج مراد آبادی الگ ہیں، فضل الرحمان رحمت اللہ علیہ الگ ہیں۔ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان کی بات جب تم نے نقل کیا ہے تو تم نے اس کا رد کیا ہے یا ایسا ہی نقل کیا ہے؟ کیا چیز کا؟ گنج مراد آبادی کا جو اشرف علی تھانوی نے نقل کیا ہے۔ تم تو پہلے جھوٹے یہ بول دیے کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، وہ تو نہیں دیکھے، ہم تو بول رہے تھے کہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ہاں، تو تمہارے رحمت اللہ علیہ جو دیکھا ہے کہ ان کو تم نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے، جو انگریز کے خضر علیہ السلام کو انگریز کے لشکر میں دیکھا ہے تو خضر علیہ مراد آبادی کو تم نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے۔ کر لو۔ ہاں، تم مانتے، جو جن کو تم مانتے ہو ان کو ہم نہیں مانتے۔ تھوڑا پڑھ لکھ لو نا۔ پڑھ بھی کرو، کیا پڑھ بھی کرے؟
रहा हूँ कि हम रजा खानियों में तो कोई अंग्रेजों के खिलाफ गया नहीं, एक तो इनके बारे में ही बोलते हैं कि ये तो अहमद रजा खान रहमतुल्लाह, पहली तो बात तुमने अशरफ अली थानवी के मुंह पे लात मार रहे हो। अशरफ अली थानवी अपने शागिर्द जो है अजीजुल हसन को डांट कर कहा कि तुमने अहमद रजा को मौलाना अहमद रजा क्यों नहीं कहा, डांट कर कहा। तो वही डांट तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, अशरफ अली थानवी की डांट तुम्हारे ऊपर है कि तुम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह को अशरफ अली कह रहे, मौलाना कह के कहो। आप सुनो नबी और तुम्हारे हजरत, तुम्हारे मौलाना अनवर शाह कश्मीरी कहता है कि पहले तुम अहमद रजा जैसा बनने का हुक्म दे रहा है, और तुम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह को मेरे जैसा बनेगा। तुम बनने का हुक्म कौन देता है? जैसा कोई खराब आदमी बनने का हुक्म देता है देवबंदी मौलवी? तौबा करो, तुम तौबा करो पहले। तुम्हारे अनवर शाह कश्मीरी कह रहा है अच्छे मौलाना अहमद रजा जैसा बनो, अहमद रजा की ऐसी की तैसी, अहमद रजा जैसा बनो। तुम अपने मुल्ला की ऐसी तैसी कर रहे हो, हम क्या करें बोलो? तुम अपने देवबंदियात को लात मार रहे हो, हम क्या कर सकते हैं? जैसा मामूली बशर जो अलीफ बा भी नहीं जानता है, जाहिल जपट, वो अहमद रजा की ये औकात, ये मेरे सामने बैठ जाएगा वो। अहमद रजा की औकात तो इतनी है, अनवर शाह कश्मीरी अगर कहते हैं तुम अहमद रजा पहले बनो, फिर जो है ये इख्तिलाफ करो, अहमद रजा जैसा बनो, पहले बनने का हुक्म देते हैं, अहमद रजा बनने का हुक्म देते हैं अपने शागिर्दों को, शान से कहते हैं ये है रजा की शान। रजा का डंका देवबंद से लेकर बरेली तक डंका बज रहा है, और देवबंदी ऐसे देवबंदी है, ऐसे गलीज देवबंदी है देवबंदर कि उनका डंका कहीं नहीं बज रहा है, और अहमद रजा का डंका बरेली से देवबंद तक भी बज रहा है। हाँ, अनवर शाह कश्मीरी फिर क्यों बोल रहा है अहमद रजा बनो, पहले अहमद रजा बनो करके हुक्म देता है। और हाँ, तुम्हारी किताब में तो औकात है तो वो अनवर शाह कश्मीरी बता दिया ना। अरे तुम झूठ बोल रहे, अहमद रजा का झूठ बोल रहे हैं, हम किताब से दिखा देंगे, किताब में हम दिखा देंगे, तेरे किताब का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, देख लेना। हाँ अच्छा बता, अहमद रजा का भाव बढ़ाने के लिए हाँ बता कौन सी एक कश्मीरी रहमतुल्लाह जानते कितने बड़े आलिम हैं? हाँ, वो अनवर शाह कश्मीरी बोल रहे हैं कि अनवर शाह कश्मीरी अहमद रजा के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं है, अहमद रजा के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं। अगर अहमद रजा बन जाते, अहमद रजा की मगफिरत इसी में होगी कि उलमा देवबंद जैसे को काफिर करार दिया, क्योंकि अगर काफिर करार नहीं देता, तेरा मौलवी मुर्तजा हसन दरभंगी देवभंगी ने कहा कि अगर अहमद रजा हमें काफिर नहीं कहते तो खुद काफिर हो जाते, यानी काफिर अगर नहीं कहते तो काफिर हो जाते, काफिर कहकर वो काफिर होने से बचे। काफिर कहने से जो काफिर होने से बचता है वो है अहमद रजा, और तुम ऐसे काफिर हो कि तुमको अगर कोई काफिर ना कहे तो काफिर हो जाए, खुद तुम्हारी किताब में है। हाँ, पढ़ लेना, अहमद रजा जब मर रहा था तो क्या बोला बोल सबका फतवा वापस ले लिया। कौन सी किताब में है? खुद काफिर हो गया। कौन सी किताब में है? अहमद रजा कौन सी किताब में है? अभी इसके किताब इबारत पढ़, इल्जाम लगाया, इबारत पढ़, झूठा देवभंगी, इबारत पढ़ लेना। नहीं तू अगर जो पढ़ने की औकात नहीं है तो बोलना मत, पढ़ने की औकात है तो बोल, पढ़ना देख मैं पढ़ के बोलता हूँ तेरी किताब, अहमद रजा की बहुत तेरी किताब मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। किताब लिखा उसने, रुक जरा, तेरी किताब मैं पढ़ के बोल रहा हूँ यार, बहुत चालबाज था। तेरी किताब मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, तू अपनी किताब पढ़ के बोल, चल। अरे तामीद ईमान तुम्हारा अहमद रजा हमारी किताब पढ़ के बोल, फिर अगर तेरी हिम्मत है किताब पढ़ के बोल, अभी मेरे किताब पढ़ के बोल। अब मेरे पास है, मैं पढ़ के बोलता हूँ, वही सबूत माना जाएगा, सबूत से बात करेगा तो माना जाएगा, बिना सबूत के बाद तेरी बकवास नहीं माना जाएगा। आप देख, गंदी किताब नहीं पढ़ते हो? हाँ तेरी किताब
देवबंद ये नवाजी, ये अंग्रेज नवाजी देख, कलकत्ता में ये बात कहाँ लिखा हुआ है? 444 हयात तैयबा, इस्माइल दहलवी के हयात के बारे में लिखा है। कलकत्ता में जब मौलाना इस्माइल शहीद साहब जिहाद पर वाज फरमाना शुरू किया और सिखों के मजालिम की कैफियत पेश की, तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि आप अंग्रेजों पर जिहाद का फतवा क्यों नहीं देते? आपने जवाब दिया कि उन पर जिहाद किसी तरह वाजिब नहीं। किस पर? अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना किसी तरह भी वाजिब नहीं, बल्कि अंग्रेजों की हिमायत करने का हुक्म है। अंग्रेजों का जो सुन, मैं पूरा पढ़ता हूँ, सुन पहले पूरा पढ़ता हूँ, बाद में तू पढ़ना, इबारत पढ़ के बताना, और किताब का नाम, इबारत, सफा इसके साथ बताना, और स्क्रीनशॉट भी यूट्यूब पे तू डालना। मैं भी यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट के साथ डालता हूँ, देख। फिर एक तो उनकी रعیت में दूसरे हमारे मजहबी अरकान के अदा करने में जरा भी दस्त अंदाजी नहीं करते। हमें उनकी हुकूमत में हर तरह आज़ादी है, बल्कि उन पर अगर कोई हमला आवर हो तो मुसलमान का फर्ज है कि उससे लड़े और अपनी गवर्नमेंट पर आंच न आने दे। अंग्रेज की गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट करे, अंग्रेज के दल्ले देवभंगी, अंग्रेज की हुकूमत। आला हजरत ने कभी भी, आला हजरत ने किसी किताब में भी अंग्रेज की हुकूमत को अपनी हुकूमत कहा हो तो बता। बता। हो गया ना, आप मेरा बात सुनेगा? हाँ सुनूंगा, पूरा सुनूंगा, तब भाई चुपचाप सुनूंगा। इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के टक्कर के बुजुर्ग हैं, वो जो है माज़अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ? अंग्रेजों की हुकूमत वहाँ गासिबाना तौर पे नहीं हुई थी। ये उस दौर की 1700 वाली बात है, 1787 वाली बात नहीं है। इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो अब्दुल कादिर इस्माइल दहलवी की वफात कब है? इस्माइल दहलवी की वफात कब है, बता। कब है इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की वफात कब है? हाँ 1845 है, 1845 तकरीबन 1845। हाँ तो 1800वीं सदी में जिहाद का फतवा कब लगा था, ये बताओ। हाँ कब लगा था जिहाद का फतवा? जिहाद का हर आलिम फतवा जब जालिम अंग्रेज हुकूमत पे आया तो अंग्रेज की हुकूमत, तेरा मुल्ला अंग्रेज को अपना हुकूमत क्या, अंग्रेज जब भी आया, अंग्रेज जब काबिज हुआ तो अंग्रेज ने कभी मुसलमानों की खैर खाही की? मुसलमानों की खैर खाही की? तुम तो अहमद रजा की तरह जाहिल है, मेरा बात सुनो। उस वक्त अहमद रजा को सबसे बड़े आलिम दिन कह रहा है, तेरा मुल्ला को तू लात मार रहा है। सबसे पहले तेरे मुल्ला को तू लात मार रहा है। तेरा अशरफ अली थानवी कह रहा है, एक आलिम दीन अहमद रजा खां बहुत बड़े आलिम थे। अनवर शाह कश्मीरी कह रहा है अहमद रजा बहुत बड़े आलिम थे। गंगोही कह रहा है, हट, तू अपने हट कह रहा है ना, तू हट कह के देवभंगी काफिर, तू हट कहकर ना अशरफ अली थानवी को हट कह रहा है। हट थानवी काफिर, हट इस्माइल दहलवी काफिर, हट अनवर शाह काफिर, ऐसा तू हट जो कह रहा है ना, ये इस्माइल दहलवी को, अनवर शाह कश्मीरी को, अशरफ अली थानवी को तू कह रहा है हट। और जो अगर तू कहता अशरफ ने आलिम दीन कहा तो तुझको भी आलिम दीन कहना चाहिए। ये होता है आवारागर्दी, तेरी आवारागर्दी है ना, आवारा सांड, बेलगाम सांड है तू, बेलगाम सांड है ना। तू किसी अपने मुल्लाओं को मानता है ना कुरान और हदीस को मानता है। जब तेरी मर्जी जो होता है वो बकवास तू करता जाता है। बोल। हाँ तो अनवर शाह कश्मीरी ने क्या कहा? अनवर शाह कश्मीरी तेरे नजदीक हुज्जत नहीं है? तो अनवर शाह कश्मीरी ने आलिम कहा तो तू जाहिल कह रहा है। हाँ अनवर शाह कश्मीरी आलिम नहीं कहा, अनवर शाह कश्मीरी ने आलिम नहीं कहा। हाँ अनवर शाह कश्मीरी ने बुखारी की शरह में फैजुल बारी में अहमद रजा को आलिम दीन लिखा है। मौलाना अहमद रजा बहुत बड़े आलिम दीन है, उनको इज्जत करो। हाँ अच्छा बात ये बता, तारिक जमील तेरे नजदीक हुज्जत है कि नहीं?
इज्जत है मेरे नजदीक। तारिक जमील को लात मार दिया। से ज्यादा आलिम है। अब जितने भी तबलीग वाले हैं ना, जितने भी तबलीग जमात है ना, तुझे लात मारेगा आज के बाद तुझे लात मारेगा तारिक जमील के चेले जितने भी देवबंद में है या फिर निजामुद्दीन में है, रायबेंड में है या बांग्लादेश में है, सब तुझे लात मारेगा। अब ये देखे देवबंदी तबलीग जमात वालों, देखो अब तुम्हारे तारिक जमील को भी लात मार रहा है। तारिक जमील कह रहा है अहमद रजा खां आलिम, बहुत बड़े आलिम थे अहमद रजा खां, उनकी बहुत बड़े आशिक रसूल थे, खुद तारिक जमील कहता है। अब तुम काफिर, एक तो तुम किसी भी आलिम को मानने को तैयार नहीं। वो क्या बोले कि अहमद रजा को हाँ, आप सुन दूसरी बात, आप तेरी अंग्रेज नवाजी की दूसरी सबूत मैं पेश करता हूँ। मौदूदी के बारे में भी बोल रहे, मौदूदी के बारे में बोले कि नहीं वो तो मैं नहीं जानता, मौदूदी कौन है कौन नहीं, मौदूदी के बारे में हमको चर्चा। हाँ, तो आलिम दिन तू जाहिल क्यों कह रहा है? जो आलिम कह रहा है, अगर वो आलिम कह रहा है तो तुझे कहना चाहिए, तेरे नजदीक हुज्जत नहीं है ना, तेरे नजदीक तारिक जमील गलत है, तारिक जमील गलत है। चल, तेरे नजदीक तारिक जमील गलत है, तेरे नजदीक तारिक जमील गलत है। नहीं, तारिक जमील मेरे नजदीक इस मामले में गलत है कि अहमद रजा को इज्जत दो, लेकिन जाहिर उतना बड़ा बनाम मत। अरे तारिक जमील गलत है ना, किस लिहाज से भी गलत है, तूने गलत कह दिया। चल, यही काफी है। तबलीग जमात वाले तुझे लात मारेंगे और तबलीग जमात वालों को तेरा एड्रेस भेजना, मैं एड्रेस भी सेंड करूंगा, तेरा नंबर तेरा एड्रेस भी इस यूट्यूब पे डालूंगा, ताकि तबलीग जमात वाले तुझे फोन कर करके लात मारे, जूते मारे, तुझे तेरे एड्रेस ढूंढ कर तुझे जूते मारने आए। सुन, अब मैं देवबंदी काफिरों की और कुफरिया अकीदा मैं पेश करता हूँ, सुन। अच्छा भाई, अहमद रजा वाला बकवास मत। हाँ, हमारा कुत्ता का भौंकना और अहमद रजा का फतवा हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। अच्छा सुन, सुन, एक बात सुन जरा, एक बात तुझे पूछ रहा हूँ मैं, तो इसका जवाब दे। हाँ, एक बात जवाब दे। कोई अगर मदीना शरीफ जाकर ये अगर सोचे कि मदीना मक्का में क्यों आया, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में क्यों आया, मैं दूसरी जगह चला जाता तो अच्छा होता, तो ऐसा अगर कोई सोचे, ऐसा अगर कोई दूसरी जगह की उम्मीद रखे, हम तो मक्का शरीफ जाते हैं सारी दुनिया भूल जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं सारी दुनिया भूल जाते हैं। और हाँ, लेटरिन में घुस जाता है रे। हाँ, लेटरिन में कौन घुस जाता है? हाँ, अरे काफिर इमाम से हमको क्या लेना देना है रे? काफिर इमाम से, वहाँ जालिम बादशाह से, काफिर इमाम से क्या लेना देना है? हाँ, तो उनके तेरी किताब में भी लिखा हुआ है कि वो अहले सुन्नत पर जुल्म करने वाले हैं। जो अहले सुन्नत पर जुल्म करने वाले हैं, उन जालिमों के पीछे हम नमाज क्यों पढ़ेंगे? अल्लाह फरमाता है जालिमों से दूर रहो। हाँ, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह ताला मुजरिमों को अलग कर देगा, मुजरिमों अलग हो जाओ। जब अलग कर देगा तो हम पहले ही अलग हो जाते मुजरिमों से, मुजरिमों के साथ में खड़े नहीं होते। तेरे बराहीने कातिया में सुन, बराहीने कातिया में लिखे हैं कि मक्का पर कब्जा होना हक पर होने की दलील नहीं। बराहीने कातिया 48 नंबर पेज में लिखा हुआ है, पूरा वाकया 5-6 पेज में लिखा हुआ है। आप सुन, तेरे अश्शिहाबुस साकिब में लिखा हुआ है, जो वहाँ का काबिज आले सऊद सुन, झूठ नहीं, ये सब हवाले के साथ मैं पेश करूंगा। आले सऊद के बारे में लिखा हुआ है, सुन, आले सऊद सारे झूठ नहीं, एक पेज के साथ तेरी किताब से स्क्रीनशॉट के साथ भेजूंगा। आले सऊद सुन, आले सऊद की मजालिम सुन, जो अहले सुन्नत के खून को हलाल समझता था, अहले सुन्नत के खून को हलाल समझता था, उसका कब्जा हुआ, तो हम जो हमारे खून को हलाल समझे, उनके पीछे हम नमाज क्यों पढ़े? बोल, तेरी किताब में लिखकर तू उनके जो खून करता है, क्योंकि तू अहले सुन्नत नहीं है, देवभंगी अहले सुन्नत नहीं है, अहले सुन्नत के खून करने वाले, अहले सुन्नत पर अकायद की तकलीफें देने वालों को अकायद की तकलीफ देता था। हाँ, मदीना हम जाते हैं ना, सिर्फ हमको मजार शरीफ, वहाँ के जमीन, वहाँ की सुन, वहाँ के आबो हवा से हमें मतलब है, वहाँ की मट्टी से मतलब है, वहाँ के मजार के तबर्रुकात से मतलब है, वहाँ के मजार शरीफ से मतलब है, वहाँ के सहाबा इकराम के निशानियों से मतलब है।
ہمیں وہاں کافر سے فاسق سے وہاں کے منافقین سے ہمیں مطلب نہیں. ہاں منافق بسے گا قیامت سے پہلے جب زلزلہ آئے گا منافقوں کو مدینہ ایسا نکال دے گی جیسا کہاں تم لوگ کو نکال دیا ویسے نہیں نکال نہیں دیا. ابھی سب بسے ہوئے ہیں. جب نکالے گا نا وہ مدینہ کے باہر آئے گا اور دجال سے ملاقات کرے گا. جب مدینہ میں زلزلہ ہوگا 3 مرتبہ زلزلہ ہوگا. جب سارے منافق مدینہ سے نکلیں گے مدینہ شہر سے باہر آ جائیں گے اور جو مومن ہوں گے وہ کہیں گے ہم مریں گے تو مکہ میں مریں گے مدینہ میں مریں گے. جب وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو ان کو وہ مریں گے نہیں. اور جو زندہ رہنے کی خاطر جو زندہ رہنے کی تمنا کرنے سے بچنے کے لیے مدینہ شہر کے باہر آئیں گے وہ دجال سے ملاقات ہوگی. تو مدینہ میں یہودی منافق بدعقیدہ گمراہ کافر ہوں گے چھپے ہوئے کافر ہوں گے. تو اس لیے ان کافروں سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے. خود تیری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ جو آج جن کا قبضہ ہے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل سنت کو تکلیف دیتے تھے, اہل سنت کے خون کو حلال سمجھتے تھے. اب بتا اہل سنت کے خون کو حلال سمجھتے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو؟ جو اہل سنت کے خون کو حلال سمجھتے تھے ان کے پیچھے تو نماز پڑھتا ہے؟ ارے احمد رضا کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے. اب تو کہہ رہا ہے مدینہ میں تو جاتا ہے. میں تجھے سوال پوچھنے کے بجائے تو جو ہے سوال کو دوسری طرف لے گیا. تو جس طرف تو لے گیا اسی کی طرف بات کر رہا ہوں میں کہ اہل سنت کے خون کو جو حلال سمجھتے تھے ان کے پیچھے تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ بول. جھوٹ بولتا ہے. اچھا تیرے شہاب الثاقب میں حسین احمد تانڈوی جو شیخ الہند ہے تیرے نزدیک شیخ الہند بولتا ہے نا. تیرے شیخ الہند جھوٹا ثابت تو نے کر دیا. تیرے شیخ الہند نے لکھا ہے میں یہ ثابت کروں گا. ہاں آپ سن. ہاں عقائد کی تکلیف دیتے تھے. عقائد کی تکلیف اہل سنت کو عقائد کی تکلیف دینا کیسا ہے بتا؟ یعنی جو عقائد اہل سنت کا نہیں ہے ان عقائد کو اہل سنت پر تھوپنا زبردستی اہل سنت کو عقائد کا قائل کرنا جھوٹے عقائد غلط عقائد پر. آپ اہل سنت جو اہل سنت تھے ان کو اہل سنت کہا گیا اور اہل سنت کے خلاف جو آج قبضہ کیا ہوا ہے ان کو وہ تکلیف دیتے زبردستی. وسیلہ کا انکار کرو, وسیلہ کو مت مانو, توسل استمداد استعانت کے خلاف کرو. قبر پجوا تو ہے. آپ سن نانوتا میں جاڑا بخار آیا تو سب قبر کی مٹی کیوں چاٹ رہے تھے؟ ہم پوجا ہم نہیں کرتے نا. ہم تو قبر کو بذریعہ کر لیتا ہوں. ہاں خالد دیوبندی ہیلو. تم آدھے میں بات ختم نہیں کیا دیا اور بتاؤ تمہاری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے. اچھا چلو تم کافروں کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اب بتاؤ یہ بتاؤ کعبے میں بھی جا کے تم لوگ گنگوں کا راستہ ڈھونڈتے ہو. کعبے میں بھی جا کے گنگوں کا راستہ ڈھونڈنے والا کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے؟ کعبے میں بھی جا کر گنگوں کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے ایسے شخص کو کیا کہتے ہو تم؟ کعبے میں جا کر گنگوں کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے مطلب کیا ہوا تھا؟ کعبے میں جا کر ہدایت کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدل للناس ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدل للعالمین. اللہ فرماتا ہے عالمین کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا. ہاں سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو کعبہ ہے تو گنگو کیا ہے؟ بریلی نہیں ہے تو گنگوں کا راستہ کون ڈھونڈ رہے تھے بتاؤ؟ قبر کے پجاری تو تم سنو اب کعبے کا راستہ کعبے میں جا کر گنگوں کا راستہ کعبہ تو اللہ نے فرمایا جب یہاں ہدایت کے لیے آیا ہے تو گنگوں سے تجھے کیا مطلب؟ اللہ تو فرما دیا تجھے میں ہدایت کے لیے کعبہ بنا دیا. اب تو کعبے پہ خوش نہیں ہے گنگوں کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے. ہاں بکواس مت کر. اچھا بکواس مت کر. اس کا جواب دے گنگوں کا راستہ کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ گنگو کعبہ سے بڑا ہے کیا گنگو؟ کعبہ سے مورتی توڑ کے تو بکواس ہو گیا. تم کیا سمجھ رہے
को तुम्हारा गोश्त बचा लेगा, ऐसा बोलोगे तो ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। अरे सुन अब बकवास मत कर, तू मेरे सवाल का जवाब दे। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं किताब के हवाले से बात कर रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ। सुन, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तू बकवास कर रहा है, मैं तेरी किताब पढ़ के बता रहा हूँ। सुन सुन ये देख, फिरे थे काबा में भी पूछते गंगों का रास्ता, फिरे थे काबा में भी गंगों का रास्ता पूछते हुए काबा में फिर रहे थे। अब वहाँ गंगों का रास्ता कौन बताएगा? हाँ, जूता खाएगा नहीं तो फिर क्या करेगा? बोल, देवबंदी इतना बेवकूफ है, इसलिए अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि सारे बेवकूफ मेरे ही हिस्से में है। हाँ, तो काबा में भी जाके गंगों का रास्ता क्यों ढूंढ रहा है? अल्लाह ने हिदायत के लिए जब फरमा दिया कुरान में, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, जब हुदल लिल आलमीन, आलमीन की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने काबा को बना दिया मक्का में, अल्लाह ने हमारे लिए काबा दे दिया, तो काबा से बड़ा था क्या गंगो? काबा से भी ज्यादा अहमियत थी क्या? ये किताब है मरसिया रशीद अहमद गंगोही, मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी खुद कह रहा है, देवबंदियों का मोहतमीम, देवबंद दारुल उलूम देवबंद का। हाँ, उसने लिखा है, फिरे थे काबा में भी पूछते गंगों का रास्ता, जो रखते अपने सीनों में थे ज़ौक़ शौक़ इरफानी। एक मिनट, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जैसा, तो ऐसा अब्दुल कादिर जिलानी के जैसा। तू पहले भी एक गुस्ताखी ये किया कि इस्माइल देहलवी उनके पाया के, उनके बराबर के वली थे। माअज़ल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी के बराबर के वली थे बोलकर तूने। अब्दुल कादिर जिलानी पर तमाम उम्मत का इजमा है, औलिया अल्लाह के सरदार और तमाम औलिया के सरदार है, तमाम उम्मत के यानी 1.25 लाख नबियों के वलियों के सरदार है। उनके जैसा क्या, उनके कदमों के धूल के बराबर नहीं। जो अंग्रेजों की दलाली किया है, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम लिखा है, और जिसने उम्मत को लड़ाने के लिए शिरके असगर को शिरके अकबर लिखकर उम्मत को लड़ भिड़ कर ठीक हो जाएंगे, लड़ते रहने दो, ऐसा कहकर जो किताब लिखा है, उस बेवकूफ को तू अब्दुल कादिर जिलानी के बराबर कह रहा है। माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। और तूने, तेरी गुस्ताखी ये है, तूने जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को तमाम औलिया का सरदार अहमद रजा बोला कि अहमद रजा का बाप बोला? तो तू इनकार कर रहा है ना? सब बोले, तमाम उम्मत बोले, अहमद रजा भी बोले और अहमद रजा के बाप भी बोले। और तूने अपने अकाबिरीन को लात मारते हुए तूने खुद किताब, तू खुद कह रहा है, तेरे अशरफ अली थानवी के सामने जब किसी ने कहा कि अहमद रजा ये लिखा है, तो अशरफ अली थानवी ने धमकाया, उनको डांटा। तुझे भी डांटता, लेकिन तू बदनसीब है, तुझे उनकी डांट नहीं मिली और तुझे बरेलवियों की डांट खानी पड़ रही। आज बरेलवी तुझे डांट रहा है, अशरफ अली थानवी के बदले में बरेलवी तुझे डांट रहा है, क्योंकि इसी बात पर अशरफ अली थानवी ने अजीजुल हसन को डांट कर कहा। और दूसरी बात, एक बात और बता, इस बात का जवाब दे। मेरा सवाल का जवाब दे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से तुम लोग नमक हरामी क्यों करता है? कौन से नमक हरामी किए? बोलो, बता। गौस पाक बड़ी है। कौन? अरे गौस पाक बड़ा है कि इमाम अबू हनीफा बड़ा है? बोल। तो हमने कौन से नमक हरामी की? इसमें उलमा की ऐसी की तैसी ग्रुप में हो गई। बोल, कौन बड़ा? हाँ, कौन बड़ा? अब तो इमाम अबू हनीफा जब कह दिया गया तमाम औलिया का सरदार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु और हर फिरके के नजदीक है, तो औलिया में हर वली जो ताबी सहाबा, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, हजारों अब्दुल कादिर मिलकर भी इमाम अबू हनीफा के बराबरी नहीं कर सकते। ये किसने लिखा है? इसका सबूत कर ले, बुला ले, इसका सबूत दे, बाप को दे, सबूत पेश कर, सबूत पेश कर, सबूत पेश कर। अब सबूत पेश कर दे, सुन लो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खैरुल कुरून के हैं, ताबई हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ताबई हैं। बोल, ये किस किताब में लिखा हुआ है? अब्दुल कादिर जिलानी हजारों अब्दुल कादिर जिलानी इमाम अबू हनीफा के बराबर नहीं हो सकता, ये किस किताब में लिखा? तू अपने मन से बात मत कर,
वालेकुम सलाम। अपने मन से बात मत कर, अपने मन से बात मत कर, अपने मन से बात मत कर। अब तेरी मन की बात नहीं सुनते हम। क्या औकात है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने? चल बता, तू क्यों नहीं हाँ, नमाज पढ़ता है? जब तमाम औलिया अल्लाह ने कह दिया, तमाम जमाने के मुत्तफिक, जो इजमा होता है ना, इजमा भी हुज्जत होती है, इजमा हुज्जत होती है। इस पर इजमा है, उम्मत का इजमा है, अब्दुल कादिर जिलानी तमाम औलिया के सरदार है। और तू इजमा का मुनकिर है, इसलिए तू काफिर है। क्योंकि हमारे नजदीक 4 दलाइल है, कुरान और हदीस और क़ियास शरई और इजमा। इजमा का मुनकिर काफिर होता है, इसलिए तू काफिर है, समझा? अब तेरी हर कुफर मैंने साबित कर दिया इस ऑडियो के अंदर। तूने खुद तारिक जमील का भी रद्द किया, तूने तारिक जमील का भी रद्द किया, अशरफ अली थानवी को तूने खुद काफिर करार दिया। हाँ, बस बात इतने पर खत्म हो गई, तेरे कुफर साबित कर दिया मैंने। हाँ, अब मुझे तेरी बात और तेरी बकवास नहीं सुनना है। अब एक बात सुन, गद्दार तो तू है, तूने गद्दारी इस्लाम से गद्दारी किया। काबे पे जाके भी तू गंगों का रास्ता ढूंढ रहा है, गंगों का रास्ता ढूंढ रहा है। काबे से गद्दारी किसने किया बता? जाहिल तो तू है, तेरी किताब को तू नहीं मान रहा है। अच्छा बता, कबर पुजारी ये बता, जब नानूता में जाड़ा बुखार आया था, तुम लोगों ने कबर की मट्टी क्यों चाट रहे थे? नानूता में जब जाड़ा बुखार आया था, याकूब नानूतवी के कबर की मट्टी क्यों चाट रहे थे तुम लोग? नानूता में अशरफ अली थानवी लिखे हैं हिकायत औलिया में, नानूता में जाड़ा बुखार आया तो सारे लोग, नानूता के सारे देवबंदी याकूब नानूतवी के कबर पे जाके मट्टी चाट रहा था। अब कबर वालों को खिताब करके याकूब नानूतवी का बेटा भी जाके कबर पुजारी, देवबंदी कबर पुजारी। हाँ, तूने अब बता, तेरी कबर, तो कबर के जाके पैसा मांगता है, बता, कबर में जाके अगर कोई कहता है, कबर वाला तो भीख मांगना होता है रे। अच्छा, कबर वाले से मांगना क्या है? अरे कबर वाला नोट छापता है, कारे का मशीन है, कारे उसके पास। अच्छा, तो तेरे कबर वाले के पास हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की खुद लिखता है एक साहब जो है कबर पे जाके जब मांगा तो रोजाना 2 आने कबर से मिलता रहेगा बोल के बताया, तो उनको रोजाना 2 आने कबर से मिलता था। ये देख, किताब मैं पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ, ये देख, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हजरत की खिदमत में सुन। हाँ, तो तू सिर्फ वो पहले के बुजुर्गों से बराबरी कर रहा है, तेरे कटमुल्लाओं को। अब सुन, हजरत की खिदमत में ग़िज़ाए रूह का वो सबक, वो हजरत शाह नूर मोहम्मद साहब की शान में है, सुना रहा था। जब असर मज़ार शरीफ का बयान आया तो आपने फरमाया, मेरे हजरत का एक जोलाहा मुरीद था, बाद इंतकाल के हजरत के मज़ार शरीफ पर अर्ज किया कि हजरत मैं बहुत परेशान और रोटियों का मोहताज हूँ। हाँ, अब तूने कहा ना कबर पे जाके मांगने वाला कबर पुजारी होता है। अब तेरे मुल्ला कबर पे जाके मांग रहा है, ये लिखा, दस्तगिरी फरमाइए। अब मैंने इस किताब से, ये है इमदादुल मुश्ताक इला अशरफिल अखलाक, ये अशरफ अली थानवी लिखता है। जो अशरफ अली थानवी खुद मुशरिक और कबर पुजवा साबित हो गया। वमा अलैना इल्लल बलाग।